So branch accounting. Answer 9. 1 and 9, answer 9. So regarding 9, first the question, head office branch given, trial balance given 31st December, major limited, this is company, this is known as, this is company and its branch. Below some adjustment given 1, 2, 3, 4, asking to record the foregoing in the appropriate ledger in both set of books. Ledger means, it means something is there which entry we have to do, and prepare balance sheet. Undertaking as a whole. Undertaking as a whole means no need columnar, balance sheet, statement, outer column. Direct. So done, single column. Right? कोई नहीं बनाया, चल कोई बात नहीं. So here what we see, they have said ledger, it means some adjustment is there. The first will do ledger part. They are not asking journal entry, they are asking ledger. Understanding question very important. They say past journal into that journal. Ledger, it means ledger and balance sheet. So write down in the books of HO, in the books of HO, in the books of branch, in the books of HO, in the books of branch. Now, trial balance given, maximum all entries are there, no need to worry. Okay, all entries there, no need to worry. We will do those ledgers where we need adjustment. जहां पर एडजस्टमेंट चाहिए वो लेजर में एंट्री करेंगे, जिसमें नहीं चाहिए वो एज इट इज रहेगा. एकदम सिंपल वे. चलो, फर्स्ट goods transferred from HO to the branch. HO branch. Cost plus 10%. And both revenue account have been prepared on the basis of prices charged. और दोनों का जो revenue account बना हुआ है वो इसी बेसिस पर है. ठीक है, इसका मतलब 10% कंसिडर है. तो हम लोग को मालूम है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल करना पड़ता है. तो चेक रिवेन्यू अकाउंट इज देयर. ठीक है, नाउ रिवेन्यू अकाउंट देखिए एचओ के बुक्स में. बाय बैलेंस BD 4321. अच्छा, कैंसल कहां करते हैं प्रॉफिट हम लोग? हेड ऑफिस का बुक्स में. तो ब्रांच का रिवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, एचओ का करेंगे. ठीक है, चलो वापस. 2. Relating to HO goods held by the branch on 1st January
25 includes goods received from HO at invoice price 4565. Goods in transit. ठीक है, सामान कौन भेजा? हेड ऑफिस। किसको? ब्रांच को। ब्रांच को मिला ईयर एंड के बाद में। इसका मतलब ये गुड्स है, इस पर लोडिंग भी है। ठीक है, लिखिए, एक वर्ड लिखिए, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व। नाउ 4565 गुड्स इन ट्रांजिट। ध्यान से, गुड्स इन ट्रांजिट ये ऑन द वे है। फ्यूचर में ये गुड्स किसको मिलेगा? ना, इसके अंदर और भी नहीं। ये इंटरप्रिटेशन पॉइंट नंबर 2 को फिर से, गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच, हेल्ड लाइंग विथ ब्रांच, इसका मतलब हुआ अनसोल्ड गुड्स। HO अनसोल्ड गुड्स। एनीवे, इस पर भी स्टॉक रिजर्व होगा, इस पर भी स्टॉक रिजर्व होगा, कोई बात नहीं। और देखिए पॉइंट 3, गुड्स इनवॉइस्ड बाय HO टू ब्रांच 3641। ठीक है, वेयर इन ट्रांजिट, ट्रांजिट पर भी कैंसिल करना होगा, प्लस 3641 इंटू 10/110। हाउ मच? 10/110। फिर से 4565 प्लस 3641 इंटू 10/110 comes to, चलो ठीक है, 746। ब्रांच के बुक्स में लिखिए, स्टॉक अकाउंट है नहीं, करंट एसेट अकाउंट। करंट एसेट अकाउंट। टू बैलेंस BD। How much? 23715। 2 goods in transit. How much? 3641। yes, और लिखिए साथ में HO अकाउंट। HO अकाउंट by balance BD given is 22645 by goods in transit 3641 3641। Remittance of 3500 from branch, 3500 from branch, यहां पर लिखिए ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट टू बैलेंस BD
31536 31। अच्छा, यहां पर लिखिए बाई चेक इन ट्रांजिट। हाउ मच? 3500। More write down current assets. To balance BD. To balance BD. 121809. To check in transit. 3500। ठीक है, चलो और भी। Now here we have calculated stock reserve. स्टॉक रिजर्व से क्या होगा, हम लोग का थोड़ा चेंज होगा। रिवेन्यू अकाउंट में स्टॉक रिजर्व अकाउंट है हम लोग का, चेक कीजिए एचओ में है, लिखिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट। बाई बैलेंस पीडी 693। क्लोजिंग कितना चाहिए, अभी जस्ट हम लोग किए 746। It means difference will be transferred to revenue account. Balancing figure, how much? Hmm? 53 rupees. ठीक है, क्लियर? रेवेन्यू अकाउंट में लिखिए 2 स्टॉक रिजर्व अकाउंट 53 rupees. Again, point number 4. At 31st December 24, the following transactions were reflected in the head office books but unrecorded in the branch books. फिर से क्या बोला, एचओ बुक्स में रिकॉर्ड है, ब्रांच के बुक्स में नहीं है। ठीक है, हम लोग को आइटम चेक करना होगा, एचओ में है ब्रांच में नहीं है, केस क्या है। ए, द परचेज प्राइस ऑफ अ लॉरी 2500 were reached the branch on December 25। ध्यान से, lorry is a property plant equipment, we use the word fixed asset। तो lorry किसमें दिया, the purchase price of a lorry 2500 were reached the branch on December 25। तो ये तो ब्रांच का फिक्स्ड एसेट होगा, हेड ऑफिस रिकॉर्ड किया है, ब्रांच नहीं किया है, ब्रांच में एंट्री कर देंगे। लिखिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट। गिवन ब्रांच में टू बैलेंस बीडी अमाउंट
18901 क्या बोलो शुभदीप? क्यों होगा सर? एक्सपायरी तो सर पीपी होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन में जैसा दिया हम लोग लिख दिए, जैसे हम लोग को मन कर रहा है इसको पीपी करने का, कर दो पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो 18901, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2500। यस, एक्चुअल में क्या है ये लॉरी, ठीक है, ठीक है, लिख दो लॉरी। और एचओ करंट अकाउंट में भी लिख दो पीपी, ब्रैकेट में लॉरी। आइटम क्या था? लॉरी। बोलो। ब्रांच पैसा दिया है तो बैंक कैसे होगा? बहुत ज्यादा होगा, आप हेड ऑफिस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फिर से आराम से, लॉर्ड एचओ एंट्री कर चुका है या नहीं? अब खाली ब्रांच को करना है, तो ब्रांच अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लॉरी से बढ़ा देगा। किससे बढ़ाएगा? लॉरी से। पैसा कौन दिया? एचओ, उसका अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, कर दिए। बाकी अब लैंग्वेज है, हम लोग एचओ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एचओ। एचओ का अकाउंट में पीपी। ओके, है क्या आइटम? लॉरी। फिर से हाँ सर, जो डेप्रिसिएशन होगा लॉरी के ऊपर सर, फिर अभी कहाँ पहुंच गए आप? ब्रांच के पास तो है सर ये। अभी आप डेप्रिसिएशन कहाँ पहुंच गए? सब फिर नहीं पूछना है, दूसरा क्वेश्चन को मिक्स नहीं करो, नहीं तो जो है ये भी जाएगा हाथ से, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बाद में क्या होगा? डेप्रिसिएशन यहां होगा और लेस वहां होगा। यहां पर है फिक्स्ड एसेट मेंटेन्ड बाय द ब्रांच और नो? आंसर इज यस। तो डेप्रिसिएशन कौन करेगा? ब्रांच करेगा। एसेट कहां से घटेगा? ब्रांच से घटेगा। डेप्रिसिएशन कहां चार्ज होगा? ब्रांच में चार्ज होगा। इसमें तो ये नहीं बोल रहा है एसेट मेंटेन्ड बाय एचओ, तो बोल रहा है भेजा, एंट्री करो, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बी, a sum received on December 24 from one of the branch debtor 750। ध्यान से, ब्रांच का डेटर था, वो हेड ऑफिस में जाके 750 रुपए दे दिया, ठीक है। तो हेड ऑफिस एंट्री कर दिया, ब्रांच नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे? अपना डेटर 750 से कम करेंगे और एडजस्ट कहां करेंगे? एचओ में। तो डेटर मतलब क्या हो गया? करंट एसेट। देखिए यहां पर बाई एचओ, ब्रैकेट में लिख लो डेटर्स 750 और एचओ में 750 टू करंट एसेट, ब्रैकेट में डेटर्स 750, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लेजर को क्लोज करेंगे। तो रेवेन्यू अकाउंट में देखिए कितना आ रहा है, टू बैलेंस शीडी। क्लोज कीजिए एक एक करके। हाउ मच? चलो गुड। ब्रांच अकाउंट क्लोज कीजिए। ब्रांच और एचओ दोनों टैली होना चाहिए। हाउ मच कमिंग? 28,036।
28,036. चलो करंट एसेट अकाउंट बैलेंस शीट current asset account 1,309. Good. Restock reserve closed. Yes. In the books of branch current asset account close कीजिए. Balance sheet current asset account balance sheet 26,606. चलो गुड. एचओ अकाउंट इसका बैलेंस 28,036 आना चाहिए. नहीं आएगा तो चेक करना होगा क्यों टैली नहीं हो रहा है. चेक इट. टू बैलेंस शीट चेक. आया तो 28. अगर ये नहीं आएगा मतलब फिर गलत हो गया, फिर ठीक करना होगा. चलो फिक्स्ड एसेट अकाउंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट बैलेंस शीट 21,140 21,401. हेड ऑफिस करंट एसेट बैलेंस. हेड ऑफिस करंट एसेट बैलेंस 125,309. ये फिगर तो आप ही दिए थे. चलो तो हम लोग का ये देखो ए हो गया ना. लेजर एंट्री सब कंप्लीट. सेकंड इज बैलेंस शीट. राइट डाउन. यस. मेजर लिमिटेड. तो बैलेंस शीट as at 31st December 2024. Now equity and liabilities. Equity and liabilities. Now shareholders fund. Equity share capital, reserves and surplus. Equity share capital, reserves and surplus. Non-current liabilities. Current liabilities. Assets. Non-current assets. Current assets.
ठीक है, अब देखो एक एक करके। फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन, यस। चलो अब फटाफट आप लोग रेडी कर लो, क्विक। ये हम लोग क्या किए, पूरा एंट्री कर लिए, ठीक है। जो दिया हुआ था वो लिख लिया, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिए, ठीक है। कैश का कैश अकाउंट, डेटर क्रेडिटर से, लेजर अकाउंट से लिख लिए, स्टॉक गिवन। अब यहां पर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। फिटिंग्स, ओपनिंग 10,000 और परचेज कितना 1,000, और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट गिवन कितना, तो 11,000 का 10% कितना होता है, 11,000 माइनस 1,100, हाउ मच, 9,900, 9,000। चलिए बस अब चेक कीजिए डिफरेंस। डेप्रिसिएशन तो टोटल डेप्रिसिएशन, फिर से अभी हम लोग ब्रांच और ब्रांचेज अकाउंट में है। ओपनिंग एसेट कितना था, फिटिंग्स 10,000, परचेज किया 1,000, कितना हो गया 11,000, डेप्रिसिएशन 1,100। ये ब्रांच में ओपनिंग एसेट लायबिलिटी कितना है, कितना गया, कितना आया, क्लोजिंग कितना है, डिफरेंस जो भी है वो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। अब है कैसे हो जाएगा वो, अब हम लोग ट्रेडिंग पीएल से बनाएंगे तो फिर आ जाएगा। डिफरेंस इज हाउ मच, ये इंटरेस्टिंग है। जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट का डिफरेंस क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट लॉस। कैसे आया, तो हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग पीएल बनाओ, आ जाएगा, ठीक है। चेक द डिफरेंस, हाउ मच कमिंग, टू और बाई, टू में आ रहा है, अमाउंट बोलो 26 टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, यह है बैलेंसिंग फिगर। चलो कोई बात नहीं, चेक कीजिए 850 ना 830, चेक इट। थर्टी, चलो 830, 830। नाउ ट्रेडिंग पीएल ऑल ऑफ यू नो, ठीक है, उसमें भी सेम आना चाहिए 26,840 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आएगा ना 26,830 आना चाहिए। आ गया तो मैच कर गया। चलो राइट डाउन, बोलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेक कर लो फिर से। क्लोजिंग फिटिंग्स 9900, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31st December।
ट्रेडिंग अकाउंट, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, देखिए कितना है 16,380 और क्लोजिंग स्टॉक भी मालूम है हम लोग को 20,400। ठीक है, अब देखो एक एक आइटम करके। कैश अकाउंट में दिया हुआ है सेल्स, बाई सेल्स कैश 413,680, क्रेडिट डेटर्स अकाउंट से मिल जाएगा 14,350, 4,13,680 एंड 14,350। आउटर कितना आ रहा है? चलिए, इन दिस वे you try to complete all information given। कोई बात नहीं, आउटर बोलो कितना हुआ सेल्स में? 4,23 क्या बोलता है? 4,28,000। आराम से कैश अकाउंट एक एक करके पूरा स्कैन करेंगे। कैश सेल, कैश लेजर, उससे मतलब नहीं है। कैश परचेज, चलिए परचेज में आइए, टू परचेज, ठीक है। कैश 43, वेजेस 1,12,500, expenses below, inner column 2,320, amount banked no problem, balance 1,500, cash account तो चला गया, ब्रांचेज अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग, सेल्स ओवर, कैश रिसीव्ड ओवर, अलायंस मींस डिस्काउंट, राइट डाउन अलायंसेस, जो लैंग्वेज है रख दिए, अलायंसेस टू डेटर्स। कर सकते हो चेंज करने में क्या है। टू balance over, now branches account, cash, debtors, we are in trading PL item only, opening stock over, fittings means depreciation, to depreciation on furniture and fittings 1,100, goods sent to branch, write down two goods from HO, goods from HO 226,500। अरे टू गुड्स माने गुड्स की बात, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट है, गुड्स भेजा, क्या होगा? रेंट एंड रेट्स, राइट डाउन टू रेंट एंड रेट्स। ध्यान से, ओपनिंग कितना था? 20,200 है, चलो माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, माइनस 4,340 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हाउ मच? रेंट एंड रेट्स 6,320। इस साल का खर्च कितना हुआ? हाउ मच कमिंग? ये सब कुछ नहीं है, थोड़ा अकाउंट्स का प्रैक्टिस वाला चक्कर है, समझ गए? जैसे हम लोग बोलते हैं ना टैक्स, आपका ठीक का मतलब क्या है? एज अ होल अकाउंट्स
ठीक होगा, एज अ होल सब जगह ठीक होने लगेगा। एक जगह ठीक होगा, दूसरा हाउ मच, क्या बोलो, 20,200 माइनस 4340 प्लस 6320, 22, चलो 22,180 रेंट एंड रेट्स। और आइटम देखिए, सैलरीज ऊपर लिख लीजिए, 2 सैलरीज 32,300 प्लस 1,000 आउटस्टैंडिंग 33,300। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस था उसमें ऐड कर लो 2480, हाउ मच, 4800। फिटिंग्स, डेप्रिसिएशन ओवर, क्लोजिंग स्टॉक एवरीथिंग ओवर, 2 जीपी by GP, 2 NP. Regarding NP, this should be 26,830। ध्यान से, अगर आया मतलब ठीक है, नहीं आया मतलब गलत है, कुछ मिस हो गया। चलिए कीजिए। सर दूसरा है 88,690। हाँ, पूरा कर लो, पूरा कर लो, पूरा कर लो। जी एनपी आ जाने से आंसर दे देना। चलो गुड, पहले जीपी निकालिए फिर एनपी निकालिए, आ गया मतलब ठीक है। 88, चलो 88,690 चेक करो, अब आ रहा है। यस सर। हाउ मच, 26,830। 26,830, both should match। नहीं आ रहा है, चलो चेक करो, देखो चेक इट, पहले जीपी चेक करो। चलो कोई बात, टू 26,500, ठीक है। अब आप लोग के पास, अब ध्यान से, थ्योरी शीट है, 4 पेज का थ्योरी है, ब्रांच प्रैक्टिकल रिलेटेड पूरा एंट्री दिया हुआ है, एंड ऑल 9 प्रॉब्लम्स। इफ यू गो थ्रू यू विल सी यू कैन इजिली डू इट। एक बार क्विक गो थ्रू कर लीजिए, कोई डाउट है पूछिए। एवरीवन, फर्स्ट 4 पेज नोट्स, 4 पेज नोट्स, एनी डाउट कंफ्यूजन आस्क इट। 4 पेज का नोट्स है, कोई डाउट कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, ठीक है। सर कल फिर सब मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम। ब्रांच अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिएगा, स्टडी मैट से भी टास्क अपडेट, ठीक है।